स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2018 में गेट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर -1⁻² आयोटा अपॉन पाई इज गिवन बाय इन 4 ऑप्शन, फर्स्ट A, B, C, D. So to find out the solution part of this question, we have given that -1⁻² iota, where iota is a complex number, upon pi. ठीक है, तो by De Moivre's theorem we know that e⁻iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta. If theta is equal to pi, in this equation, then iota into pi is equal to cos of pi plus iota sin of pi, and we know that sin of pi is equal to 0 and cos of pi is equal to -1. So putting the value of this, we get e⁻iota pi is equal to -1 plus 0 into something 0, it's -1. The value of -1 is equal to e⁻pi. Then putting the value of -1 in this equation, in this number, we find out that e⁻iota pi इंटू यहाँ पे हमारे पास -2 आयोटा अपॉन पाई, कैंसिल पाई टू पाई, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या रह जाएगा e⁻². सो दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is our next question. What is the statement of the question? Let f is a function from C to C be an entire function, given that f is entire function with value of 0 at f is 1 पे 2 है और f dash 0 है कितना है 0. If there exists a constant m greater than 0 such that the double derivative of f and mode of this function is less than m for all z belonging to C for all complex number, then the value of f of t is given by this 2, 5, 2 plus 5, 5 plus 2. So this is our option part. Now come to the solution part of this equation, this question. Given that f is a function from C to C, be an entire function, and by properties of entire function this implies that f dash z है वो भी हमारे पास क्या होगा entire function, और this implies that f double dash z है वो भी हमारे पास क्या होगा entire function by properties of entire function. And given that mode of f double dash z is less than m for m greater than 0 for all z belonging to C. This is this condition is given. Then by Liouville's theorem, if f of z is entire function and mode of f of z is constant, is less than m या फिर bounded है, this implies that f of z is a constant function. So here in place of f of z we given that f double dash z. So by this theorem this implies that f double dash z is equal to a constant function where a is any constant. Okay, by integrating both sides we get value of f of z, f dash z is equal to az plus b, and again integrating we get a value of f z is equal to a into z square by 2 plus b into z plus c. Now given that value of f0 is equal to 1, f of 0 is equal to 1, from here we get f0 is given 1 is equal to, ये हमारे पास 0, ये भी 0 plus c. This implies that c is equal to 1, value of c is equal to 1. Again given that f1 is equal to 2, f of 1 is equal to 2, this implies that f of 1 is equal to 2, replacing z with 1 we get a by 2 plus b into 1. तो ये हमारे पास b plus c की वैल्यू कितनी आ चुकी है ऑलरेडी 1 आ चुकी है. दिस इंप्लाइज दैट a by 2 plus b इज इक्वल टू 1 को इस तरफ लेके आएंगे 2 minus 1 हमारे पास कितना रह जाएगा 1. एंड गिवन दैट f dash 0 इज इक्वल टू 0, f dash 0 is equal to 0, then from this equation f dash 0 is equal to 0 is 0 into a plus b, it's plus b, and what is the value of b? It's 0. If b is equal to 0 then value of a is also 2.
then putting the value of a, b, c in this equation we get value of f of z is equal to, what is the value of a, it's 2, 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर, b की वैल्यू 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी है 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन. ही आस्क अबाउट द वैल्यू ऑफ f एट 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 1, इट्स 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5. तो कौन सा आंसर हमारे पास होगा B. So the correct answer is B. Now come to the next question. This is our next question. In the Laurent series expansion of function f of z is equal to 1 upon z into z minus 1, valid for z minus 1 is mod of greater than 1. It is a circle with radius 1 and center is also 1. Then the coefficient of 1 upon z minus 1 in the Laurent series expansion of f of z is given by the 4 option. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं. अब इसको हमें एक्सपेंड करना है. किस रीजन में? मोड z माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1. तो इसको हमें एक्सपेंड करना है. इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जो हमें एक्सपेंड करनी है, ए एन जेड माइनस 1 रेज टू पावर n इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. दिस इज द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z and the value of f of z is given by its 1 upon z into z minus 1. In roughly we check z minus z minus 1, so it's z minus z plus 1. ओके, ये कैंसिल आउट. तो इस z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है 1 है. तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 1 को मैं लिख सकता हूं z माइनस 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1. अलग अलग करेंगे तो यहां से z से z कैंसिल, यहां पे क्या रह जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1. और यहां से करेंगे तो z माइनस 1 से z माइनस 1, यहां पे क्या रह जाएगा माइनस 1 अपॉन z. लेकिन इसकी एक्सपेंशन हमें एक्सपेंड करनी है z माइनस 1 के अराउंड. तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट और प्लस 1 ऐड. ठीक है, ऐसे करेंगे. अब देखो z माइनस 1 में से और 1 में से ग्रेटर क्या है z माइनस 1. और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो ग्रेटर होता है उसको हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं. तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1. यहां से हम कॉमन लेंगे z माइनस 1. ठीक है, तो यहां से हमें अगर कॉमन लिया माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहां पे हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1. इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1. ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1. और इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलेंगे तो अल्टरनेटिव साइन से हमारे पास क्या होगा, ये ओपन. तो दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन z माइनस 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1. इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस प्लस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 क्यूब एंड अप टू सो ऑन. ये एक्सपेंड होता रहेगा. ठीक है, अब देखो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन z माइनस 1, यहाँ पे करेंगे माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर. एक पावर यहाँ है, एक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. आगे करेंगे तो प्लस माइनस. ठीक है, 1 अपॉन z माइनस 1 की क्यूब और ऐसे ही चलता जाएगा. इससे ये कैंसल. तो अब ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गई किसकी, f ऑफ z की. दिस इज द लॉरेंट एक्सपेंशन. दिस इज द लॉरेंट एक्सपेंशन एंड वी सी दैट इट स्टार्ट विद 1 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर. हियर नो टर्म ऑफ 1 अपॉन z माइनस 1 इज प्रेजेंट. This implies that कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बिकॉज इसके एक्सपेंशन में 1 अपॉन z माइनस 1 की टर्म प्रेजेंट नहीं है, इस करके इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3rd. इट्स C 0. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट गामा बी एन गिवन सर्कल z is equal to 4 into e raised to power iota theta, where theta is vary from 0 to 2 pi. Then the value of integral along the contour, this is a circle. In solution part we see that given that z is equal to 4 into e raised to power iota theta. In पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू पावर थीटा, वी इंप्लाइज दैट r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4. दिस इंप्लाइज दैट दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0 एंड रेडियस इज 4. ये हमें कंटूर दिया हुआ है जिसको उसने क्या बोला है गामा. ठीक है, इस गामा के अंदर उसने इंटीग्रेशन पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग गामा ई रेज टू पावर z
टेकिंग z कॉमन फ्रॉम हेयर वी गेट z इंटू जेड माइनस टू डी जेड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसको हमने मान लिया f ऑफ z इज ई रेज टू पावर z अपॉन z इंटू जेड माइनस टू। सो वी फाइंड दैट दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ गामा ऑफ f ऑफ z इंटू डी जेड, ठीक है। और इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा वो हमारे पास आएगा कोची रेजिड्यू थ्योरम से, ठीक है। कोची रेजिड्यू थ्योरम, द इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z डी जेड अलोंग गामा इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट इट्स सिंगुलैरिटी, ठीक है। अब हमारे पास इसकी सिंगुलैरिटी देखेंगे क्या होगी। सिंगुलैरिटी के लिए हमारे पास क्या है, z इंटू जेड माइनस टू को क्या रखेंगे, इक्वल टू 0। वी गेट z इज इक्वल टू 0 एंड 2 विच इज ए सिंपल पोल। सो z इज इक्वल टू 0 एंड 2 आर सिंपल पोल ऑफ f ऑफ z। देन रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या होगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z माइनस 0 इंटू f ऑफ z की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर z इंटू जेड माइनस टू, z से z कैंसिल, टेकिंग लिमिट z इज इक्वल टू 0 इट्स ई रेज टू पावर 0 1। तो हमारे पास कितनी रह जाएगी, ये ई रेज टू पावर 0 1, ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 2, तो ये जाएगा माइनस 1/2। और रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 2 पे ये हो जाएगी हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू 2 z माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर z अपॉन z इंटू जेड माइनस 2, जेड माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसर और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर 2 अपॉन 2, z की वैल्यू क्या है 2 है। देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z इट्स वैल्यू ई रेज टू पावर z इंटू जेड माइनस 1 डी जेड, ठीक है, z माइनस 2। तो ये हो जाएगी हमारे पास 2 पाई आयोटा एट 0 पे और इस पे इन दोनों का सम। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 2 पे ई स्क्र बाई 2 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ई स्क्र माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई आयोटा ई स्क्र माइनस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, जो किसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था और सेम ईयर में आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है। f ऑफ z इज इक्वल टू जेड क्यूब इंटू ई रेज टू पावर जेड स्क्वेयर इज ए फंक्शन फॉर ऑल z बिलोंगिंग्स टू c एंड गामा बी ए सर्कल विद z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा विच इज ए यूनिट सर्कल। अब इसमें जो मेन नोट करने की बात है, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 से 4 पाई और जो लास्ट क्वेश्चन में था वो हमारे पास था 0 से 2 पाई। अब हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहां से हमारे पास ये सर्कल आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सर्कल सेंटर 0 रेडियस 1, तो एक तो ये आ गया। अब 0 से अगर 2 पाई करेगा तो वो एक बार करेगा, लेकिन अगर वो 0 से 4 पाई करेगा तो एक बार 0 से 2 पाई और 2 पाई से फिर हमारे पास यही क्या आता है 4 पाई। तो इसका जो बाइंडिंग नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 2। तो इसका जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन का उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन f डैश z, ठीक है। यानी किसका डेरिवेटिव हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ f डैश z इट्स z क्यूब इंटू ई रेज टू पावर z स्क्वायर अपॉन वैल्यू ऑफ f ऑफ z इज एज इट इज z क्यूब इंटू ई रेज टू पावर z स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग द सर्कल गामा टेकिंग डेरिवेटिव इट्स z क्यूब एज इट इज और ई रेज टू पावर z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर का 2z प्लस ई रेज टू पावर z स्क्वायर एज इट इज और z क्यूब का 3z स्क्वायर। और इस फंक्शन को हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो ये इसके अपोन में अलग आ जाएगा, z क्यूब इंटू ई रेज टू पावर z स्क्वायर अपॉन z क्यूब इंटू ई रेज टू पावर z स्क्वायर। ई रेज टू पावर z स्क्वायर से ई रेज टू पावर z स्क्वायर कैंसिल और z क्यूब से z क्यूब कैंसिल, यहाँ से ई रेज टू पावर z स्क्वायर से ये कैंसिल और z स्क्वायर से ये कैंसिल। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचा है वो हमारे 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन अलोंग द सर्कल
गामा हेयर द रिमेनिंग पार्ट इज 2 इंटू जेड प्लस इंटू डी जेड, ठीक है, प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग द सर्कल सी गामा इट्स 3/z, ठीक है, इंटू डी जेड। अब देखेंगे ये तो हमारे पास एनालिटिक पार्ट आ गया, बिकॉज 2z हमारे पास एनालिटिक है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये हमारे पास रहता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 3/z इंटू डी जेड, और इसको हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम से करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा, और इसका हमें क्या निकालना है रेसिड्यू, ठीक है, 3/z, इसका हमें निकालना है रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, बिकॉज z इज इक्वल टू 0 इज ए सिंपल पोल ऑफ दिस फंक्शन, इट्स लिमिट z अप्रोचेस टू 0, z इंटू 3/z कैंसल आउट विद ईच अदर, इट्स 3, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे हम कौची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई, तो वो आती है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू सिर्फ 3 पे आया है, तो ये हमारे पास हो गया 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 3। लेकिन बाइंडिंग नंबर कितना था हमारे पास 2 था, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6, तो डैश की जगह क्या आएगा 6। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज 6। दिस क्वेश्चन इज सेम एज हमने डिस्कस किया था इससे पहले, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था, ये कैलकुलेशन एक्स्ट्रा थी, बाकी वही है, रेसिड्यू थ्योरम और कोची थ्योरम से ये क्वेश्चन सेम होगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। द इमेज ऑफ द हाफ प्लेन ऑफ द दिस रीजन रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, द सम ऑफ दिस two terms is greater than 0, strictly greater than 0 under the mapping w is equal to z minus 1 z plus 1, ठीक है, is given by। अब देखो ये हमारे पास क्या है w f of z, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, w is equal to f of z is given z minus 1 upon z plus iota, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास उसने जो रीजन हमें चेंज करना है, ये हमारे पास है जेड प्लेन, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज अवर जेड प्लेन, और ये हमारे पास क्या है डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो जेड प्लेन में हम देखते हैं उसने दिया रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, तो अंडर द मैपिंग डब्ल्यू एफ ऑफ जेड ये रीजन किस में चेंज होगा। फर्स्ट में दिया उसने रियल पार्ट ऑफ w है वो ग्रेटर देन 0 होगा, सेकंड में इमेजिनरी पार्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, थर्ड में बोलता है यूनिट सर्कल है उसका आउटर पार्ट होगा, और फोर्थ में बोलता है यूनिट सर्कल का इनर पार्ट होगा। तो इसको हम काउंटर एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, इफ z इज इक्वल टू 1, ठीक है, z हमने 1 ले लिया, तो z अगर हमने 1 ले लिया तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। लेकिन उसने बोला रियल पार्ट z और इमेजिनरी पार्ट z ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो रियल पार्ट ऑफ z है वो हमारे पास क्या है 1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो है 0, और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब इस मैप में हम फाइंड आउट करते हैं कि f ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी। तो f ऑफ z की वैल्यू आएगी w इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या ली हमने 1, तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या होगी 0, ठीक है। नीचे वाले टर्म देखने की जरूरत है नहीं, तो w की वैल्यू होगी 1 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस आयोटा, इट्स नथिंग बट 0। तो w की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0 आई है। तो देखो 1 को उसने इस z इज इक्वल टू 1 को उसने w इज इक्वल टू 0 पे मैप कराया है, तो क्या w इज इक्वल टू 0 देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से किस में आएगा। इसमें बोलता है रियल पार्ट ऑफ w है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इस रीजन में होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे इक्वल कर देता तो हम इसको इसमें इंक्लूड करते, तो हम इसको करेक्ट नहीं बोलते, लेकिन ये काउंटर एग्जाम्पल नहीं होता। उसने बोला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन अपना तो 0 आया है, दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सिमिलरली इसी वजह से उसने बोला इमेजिनरी पार्ट ऑफ w है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मतलब ये पार्ट होना चाहिए, ये इंक्लूड नहीं है, 0 यहाँ पे है 0, तो ये ऑप्शन में क्या हो गया रॉन्ग हो गया। थर्ड में बोलता है कि जो यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है, इसका आउटर पार्ट होना चाहिए, मतलब ये पार्ट होना चाहिए, लेकिन 0 तो इसके अंदर है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा सी। दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन, और वो मेथड तो आपको पता ही है कि यहाँ से हमें w इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z प्लस आयोटा है, यहाँ से z की वैल्यू w की फॉर्म में फाइंड आउट करो और उस z की वैल्यू यहाँ पे पुट करो,
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ u प्लस आयोटा वाई। फिर x की वैल्यू आ जाएगी u और v की फॉर्म में, और y की वैल्यू आ जाएगी u और v की फॉर्म में। और उसने दिया है फिर रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। और यहाँ से करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा कि w का मोड है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 1। वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में करवा रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।